Good morning, students. Today I am going to teach about the lesson इसमें टाइम नहीं आता। the address. This is very interesting chapter. If you take interest, I think you will be able to understand the summary or introduction of this chapter. First of all, I am going to tell about the introduction to the lesson. पहले मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन जो परिचय होता है उसके बारे में बताऊंगा. After that, I will summarize of this chapter in the next part of the video. पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा इंट्रोडक्शन, बाद में हिंदी में बताऊंगा. आपको दोनों ही लैंग्वेज में समझना है. The address is a very touching story. You can call it a tale of war, as it narrates two situations, one before the Liberation War and the other post-war period. It revolves around the young daughter of Mrs. Assis, who is good faith, allow her old-time friend Mrs. Darling to carry away all the table silver and precious old things to her own house for safekeeping. The narrator, during her first homecoming, notices many things missing. When she comes back home a second time, she sees Mrs. Darling taking away a heavy suitcase. She is also told by her mother to remember the address of Mrs. Darling. After the liberation normally returns, the narrator feels like seeing and touching her things. She goes to Marconi Street address to see Mrs. Darling. There she gets a very cold reception from her and is not allowed to come inside. When she goes there the second time, Mrs. Darling's daughter invites her in. The narrator is sad to see all her mother's precious articles kept in the untidy room in a tasteless manner. Then she decides not to recover them. She even resolves to forget the address. The story tells how war affects the lives of civilians as well. It disrupts the normal life and leads to conflicts and tension. The narrator loses her interest in her old stuff because they evoke the memories of her former life and make her nostalgic. Holland was fighting for independence. The narrator had joined the forces. It was a long drawn and deadly war. Success seemed a far cry. The people doubted if any of the soldiers would return alive. Now you have to understand this introduction of the chapter in Hindi. अब आपको इसे हिंदी में समझना है. The address is a very touching story. Address नामक जो कहानी है बहुत ही मार्मिक कहानी है. You can call it in a tale of war, और आप इसे एक युद्ध की कहानी कह सकते हैं. As it narrates two situations, जैसा कि इस कहानी में दो घटनाओं का वर्णन किया गया है. One before the liberation war and the other post war period. एक स्थिति, एक कहानी युद्ध से पहले और एक स्थिति युद्ध के बाद. इन दो घटनाओं को बताया गया है कि पहले की स्थिति क्या थी और युद्ध के बाद की सिचुएशन क्या थी. It revolves around the young daughter of Mrs. Assis, और इसकी पूरी कहानी जो श्रीमती एस हैं उनकी पुत्री के इर्द गिर्द घूमती है. Who in good faith allow her old time friends Mrs. Darling to carry away all the table silver and precious old things to her own house for safekeeping. जो अपनी एक पुरानी उनकी सहेली थी मिसेस डॉर्लिंग,
युद्ध के बाद वहां से जाते समय उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपना सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग के पास रखने का निश्चय किया था, उनका विश्वास करते हुए। द नरेटर ड्यूरिंग हर फर्स्ट होम कमिंग नोटिस, प्रथम बार जो लेखक है इसका अपने घर वापस आने पर ये ध्यान देता है, देखता है मैनी थिंग्स मिसिंग, यानी उस लेखिका ने ये देखा तो उसका बहुत सारा सामान वहां से गायब है। When she comes back home a second time, और फिर जब वो दोबारा वापस आती है अपने घर वापस, तो मिसेस डॉर्लिंग टेकिंग अवे ए हैवी सूटकेस, तो श्रीमती डॉर्लिंग एक बहुत भारी सूटकेस ले जा रही होती हैं। शी इज ऑल्सो टोल्ड बाई हर मदर, और उसे उसकी माँ के द्वारा भी ये चीज बताई गई थी, टू रिमेम्बर द एड्रेस टू मिसेस डॉर्लिंग, यानी मिसेस डॉर्लिंग जो श्रीमती डॉर्लिंग थी उसके पता याद करने के लिए उसकी माँ ने भी उसे बताया था कि आपको उसका पता ध्यान रखना है। आफ्टर द लिबरेशन नॉर्मली रिटर्न्स, जब युद्ध हो जाता है तो सामान्य स्थिति होने के बाद में द नरेटर फील्स लाइक सीइंग एंड टचिंग हर थिंग्स, लेखिका को ऐसा अनुभव होता है कि अब उसे अपना सामान की चिंता करनी चाहिए। शी गोज टू मार्कोनी स्ट्रीट एड्रेस टू सी मिसेस डॉर्लिंग, और वो श्रीमती डॉर्लिंग से जो उसे पता मालूम था मार्कोनी स्ट्रीट, वहां मिलने के लिए जाती है। देयर शी गेट्स ए वेरी कोल्ड रिसेप्शन फ्रॉम हर, वहां पर उसका कोई बहुत ज्यादा गर्मजोशी के साथ स्वागत नहीं किया जाता है। एंड इज नॉट अलाउड टू कम इनसाइड, और उसे अंदर प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। When she goes there the second time, और जब वो वहां दूसरी बार जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर इनवाइट्स हर इन, तो सेकंड चांस फिर श्रीमती जो डॉर्लिंग की डॉटर है, पुत्री, उन्हें घर ले जाती है। द नरेटर इज सैड टू सी ऑल हर मदर्स प्रेशियस आर्टिकल्स केप्ट इन द अनटाइडी रूम इन ए टेस्टलेस मैनर, लेखिका उस सभी सामान को जो उसकी माँ की कीमती वस्तुएं थी उस गंदे से कमरे में बेतुके ढंग से रखी हुई चीजों को देखकर वो बेचारी दुखी हो जाती है। देन शी डिसाइड्स नॉट टू रिकवर देम, फिर वो ये निश्चय करती है कि उसे उनको उठाना नहीं है, ले जाना नहीं है। शी इवन रिजॉल्व्स टू फॉरगेट द एड्रेस, और वो यहाँ तक निश्चय कर लेती है कि उसे उस पते को ही भूल जाना है, उसे पता याद नहीं रखना है। द स्टोरी टेल्स हाउ वार अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ सिविलियंस एज वेल, ये कहानी ये बताती है कि युद्ध किस तरह से सामान्य व्यक्ति को, जीवन को भी प्रभावित करता है। सेनाएं योद्धा को तो प्रभावित होते ही है, सामान्य जनता होती है उसका जीवन किस तरह से प्रभावित होता है। It disturbs the normal life and leads to conflicts and tension, और जो युद्ध होता है वो सामान्य जीवन को संघर्ष में और तनावपूर्ण स्थिति में बदल देता है। The narrator loves her interest in her old stuff, लेखिका को अपने पुराने सामान में इसलिए रुचि जागृत हो जाती है, उसे उस सामान को देखना इसलिए प्रिय है, because they evoke the memories of her former life and make her nostalgic, क्योंकि वो सामान उसे अपनी जो प्राचीन जीवन था, पहले का जीवन, उसकी स्मृतियों को तरोताजा कर देता है और उसे कुछ समय के लिए अवसादग्रस्त यानी दुखी कर देता है, इसलिए वो उसमें ज्यादा रुचि रखती है। हॉलैंड वाज फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, इसमें यह बताया गया है कि जब हॉलैंड की लड़ाई चल रही थी आजादी के लिए, तो द नरेटर हैड जॉइंड द फोर्सेस, लेखिका ने भी उस युद्ध को ज्वाइन कर लिया, उसमें सम्मिलित हो गई। इट वॉज ए लॉन्ग ड्रॉन एंड डेडली वार, और ये एक बहुत ही खतरनाक और लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था। सक्सेस सीम्ड ए फार क्राई, सफलता बहुत दूर तक परिलक्षित नहीं होती थी, ऐसा लगता था कि सफलता नहीं मिलेगी।
द पीपल डाउटेड, लोगों को इस बात का शक था, इफ एनी ऑफ द सोल्जर्स वुड रिटर्न लाइव, यानी युद्ध इतना भयानक था कि दोनों ही तरफ की जो सेनाएं थी उन लोगों को, आम लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उन देशों की जो सेनाएं हैं वापस जीवित लौट करके आएंगी. थैंक्स ए लॉट द रिमेनिंग पार्ट, और यू मे कॉल दैट द समरी विल बी टोल्ड यू in the next part of the video.